नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक खास पैनल है, यूएसए से जुड़े हुए तमाम लोग। जिस तरह से कैलिफोर्निया में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ एक बिल लाया गया है जिसका नाम एसबी 403 है, जिसको सीनेटर आयशा बहाब ने जो है पेश किया था और वो दोनों सदनों से पास हो गया है। अब जो है राज्यपाल के सिग्नेचर होना बाकी है, जिसके बाद वो कानून बन जाएगा। उसी मुद्दे पर जो है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास शख्सियत जो है इस डिस्कशन में, इस पैनल डिस्कशन में जुड़े हुए हैं, जो कि इस चर्चा को जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे। तो क्यों इस कानून को, इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी और किस तरह से अमेरिका में, यूएसए में जो है जातिवाद हो रहा है, किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को वहां पर कास्टिज्म फेस करना पड़ रहा है, उन सारे मुद्दों पर और कानून से जुड़े हुए पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं सभी का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, थेनो मोजी सुंदर राजन हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ इक्वालिटी लैब हैं, जो डायरेक्टर हैं इक्वालिटी लैब की। और इसके अलावा हमारे साथ में निर्मल सिंह जुड़े हुए हैं, कैलिफोर्निया से रविदास टेम्पल से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इंजीनियर संदीप जी हैं, जो आना से हैं, जो कि एक संगठन है जिसका बहुत बड़ा योगदान इस मुहिम में, इस कानून में जो है वो माना जा रहा है। तो ये सारे लोग जो है कैलिफोर्निया फॉर कास्ट इक्वलिटी जो गठबंधन है, जो संगठन है, उसके मेंबर हैं। और सभी लोगों की मेहनत और सभी लोगों का जो है प्रयास है, जिसके जरिए एक ऐतिहासिक कार्य जो है वो हो रहा है। तो सबसे पहले हम सुंदर राजन मैम से समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से ये जरूरत महसूस हुई ये कानून लाने की, क्यों, और ये जो कानून है, बिल जो है, जो अभी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है इसका, और इसको लागू होने के बाद में आपको क्या लगता है कि किस जाति भेदभाव जो है क्या वो खत्म हो जाएगा, उस पर रोक लग जाएगी? Uh, thank you so much, Sushil And I think, it's really an honor for all of us to be here. We are members of the California Coalition for Caste Equity, and we are in this very pivotal time because we're coming to the end of over 10 months of organizing where we have basically organized at every level of the state, from city to county to the state to both houses of the legislature to get our people to this moment. And currently, the Governor Newsom has 1 week left to sign the bill or to just let the bill pass into law. So we are here as members of this coalition, just thinking deeply about all of the work that went into the process of making this bill. Because for the last 10 months, we have conducted over 700 meetings. We also conducted the first statewide caravan where we went from the bottom of the state all the way to the top of the state. And we mobilized hundreds of thousands of community members to come forward it through hundreds of organizations in the coalition. So it's a very, very powerful moment, and it is Ambedkarite, vision in progress. Because again, we had Ambedkar aligned with unions, aligned with people who work on gender issues, as well as people who work on civil rights issues. All of those people put together a very powerful coalition. And now, as our final leg of our campaign, many of our members are involved in a hunger strike to really remind ourselves why we started to do this in the first place, which was for healing, for freedom, and reconciliation. And so now we are here. We are on day, I believe, 13, and it's a real honor to be able to be here to speak with love, to speak with healing, and to bring all of our people together for this historic bill.
And Tharmori, do you mind if you can add the background why the need of SB 403? Oh, I think that sure. was a part of the question also. There was, I Oh, think, three sorry, questions. I missed that. Sorry, Sushilji. So No the worries. other thing I think that is very important here is that many people, especially in our homelands, might be wondering, why do we need this bill? Didn't you guys go to America? Isn't cost over? But the problem is that, first of all, this bill tackles the global problem of caste. So in addition to our community, there are many communities around the world that suffer under caste discrimination in the United States. And unfortunately, we are seeing it manifest in housing, education, and workplace discrimination. In fact, in our research at Equality Labs, we found that 1 in 4 experience physical and verbal assault, 1 in 3 educational discrimination, and 2 out of 3 workplace discrimination. So that data has now been supplemented by thousands of testimonies that people have given across the state through these meetings in written and phone call form, because it is such a severe problem. And in fact, we have heard of people being threatened in their homes. This one individual, he was approached by a dominant caste person in his apartment building, and he said, "How dare you immigrate here? Back at home, you would be cleaning our toilets, working our fields. I'm going to kill you." And he said this to him in front of his wife and in front of his child. And unfortunately, when he went to the police didn't understand the problem because they didn't understand caste. So this bill, it basically clarifies the law, makes sure that every employer and institution understands what the problem is, and then ensures that we're able to, if we need to make a complaint, everyone understands that it's covered. So it is a very important law. It is the first acknowledgement in the United States by a state body that caste discrimination exists and it needs a remedy. And that's why it's historic. And California itself is the 5th largest economy in the world. So it would really have global impacts if it's added, because so many caste oppressed people work for Californian institutions. हाँ जी, सुशील जी कंटिन्यू करिए। ओके, एक एडिशन करनी थी। हमारी बड़ी बहन सुनीता सिंह जी फ्रॉम श्री गुरु रविदास टेम्पल पिट्सबर्ग कैलिफोर्निया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सुनीता सिंह जी का भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में, जो हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है उस पर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सुशील जी। जी, मैं अब निर्मल सर के पास आना चाहूंगा। निर्मल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरह से जो है ये पूरा मूवमेंट जो है वो चला, और उसके बाद जो है SB 403 जो है ये बिल जो है वो पारित हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये कानून नहीं बना है। क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, उसके बारे में जरा आप बताइएगा। तो पहले पहला क्वेश्चन है मूवमेंट कैसे बनी, तो मोमेंटम कैसे बना, राइट? जी सर। ओके, तो उसके लिए पहले तो मैं थोड़ा उसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ 1-2 मिनट में। तो ये जो बिल है, ये बिल जो है ये नागरिक हकों को बचाने के लिए है, सिविल राइट बिल है। तो इस बिल का जो पीछे सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं वो है इक्वालिटी लैब्स के और बहन थर्मोरी सुंदरराजन के। तो ये जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था मार्च में, उससे पहले हमें पता लगा, 1-2 दिन पहले पता लगा भाई ऐसा कुछ बिल आने वाला है। तो मेरी वाइफ वो बहन थर्मोरी सुंदरराजन से काफ़ी मुद्दों पे जो दलित इश्यूज हैं उन पे जो है काम कर रहे थे वो पहले से, तो एक दूसरे को जानते थे। तो जब हमें पता लगा भाई ये ऐसा केस आ रहा है, सिविल राइट का केस आ रहा है, तो हमारी जो टीम थी, हमारी टीम है, हम बाबा साहब को जो है हमारी एक टीम है जो बाबा साहब के वॉल्यूम्स पढ़ती है,
तो उसको हम इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये जो टीम हमारी थी अलग अलग कॉर्नर्स में फैल रखी थी हमारे जो मेंबर्स थे, और इसके कारण क्या हुआ, अभी एक तो टीम मेंबर्स जो अलग अलग जगह पे फैल रखे थे, जैसे उसमें हमारे दीपक भाई हैं, विनी भाई हैं, और सुलक्षण भाई हैं, जसवीर भाई हैं। तो ये साथी हमारे अलग अलग कोनों में बैठे थे। उनसे क्या हुआ, अभी हमें जो है अलग अलग कैलिफोर्निया के अलग अलग हिस्सों से जो इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते थे लोग, करने में आसानी हुई। फिर इसके साथ हमारे जो है और बेसलाइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आना हो गई, इनको वो भी हमारे को स्पॉन्सर बने इसमें। साथ साथ जो है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है सदर्न कैलिफोर्निया में, जो हमारे साथ बनी रही हैं। तो उसमें हमारी बहन सना का बहुत बड़ा रोल रहा है, और बाकी कम्युनिटी सिख कम्युनिटीज़ में जो है उसमें भी हमारे काफ़ी साथी जो है फ्रीमॉन्ट से जुड़े हैं। कुछ साथी जो है युवा सिटी से भी हमारे साथ काम कर रहे थे। तो ऐसे अलग अलग शहरों से जो भी लोग जात पात के विरोध में जो समझते हैं, भी उनका ये कर्तव्य बनता है भी वो इस चीज़ में फ़ाइट करें, इस बिल की सपोर्ट करें, वो सारे ही इस मुहिम में इकट्ठे हो गए। तो ऐसे ही हर हिस्से से, कैलिफोर्निया के हर हिस्से से और हर धर्म से लोग जो है इस मूवमेंट में जुड़े हैं। और अब जो जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में, तो बिल जो है दोनों सदनों में पास हो गया है। तो लास्ट स्टेप होता है, जैसे इंडिया में गवर्नर साइन करता है अपने बिल को, तो तभी वो जो है कानून बनता है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर गवर्नर जब साइन करेगा बिल को, तो तब ये कानून की शेप अख्तियार करेगा। तो तब तक इसके पास कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे जब कानून गवर्नर के डेस्क पे, जो बिल है, सॉरी कानून नहीं कहना चाहिए, जो बिल है SB 403 जब गवर्नर के डेस्क पे चला जाएगा, तो उसके 12 दिनों बाद उसको जो है डिसाइड करना होता है भी वो क्या करे। क्या वो वीटो करे, उसको वापस भेज दे, क्या वो उसको साइन करे, और क्या वो उसको ऐसे ही रहने दे, ना साइन करे ना वीटो करे। तो 3 ऑप्शंस होती हैं। अभी उसका 1 हफ्ता निकल गया है और 1 हफ्ता नेक्स्ट वाला बचा है। तो यहाँ ये सिचुएशन है करंटली। तो आगे आप सवाल ले लीजिए बाकी साथियों से। जी, थैंक यू। अब हम सुनीता सिंह जी से जानना चाहेंगे, मैम आपको क्यों लगा कि यहाँ पर जो है कि एक एंटी कास्ट बिल जो है वो होना चाहिए? किस तरह से जो है वहाँ पर बहुजन समाज के लोग कास्टिज्म फेस कर रहे हैं, और इसके बारे में कुछ मैं चाहता हूँ दर्शकों को बताइएगा। थैंक यू सुशील जी। सो मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ? हिंदी में ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, कोशिश करती हूँ। सो जब मैं पहले जहाँ मूव हुई थी, इंडिया से आई थी, इट वाज 1981। उस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक गुरुद्वारा था, सिख टेम्पल था, और हमारी इंडियन पंजाबी या सिख या इंडियन पॉपुलेशन इन जनरल बहुत कम थी। सो इसलिए बहुत ज्यादा गुरुद्वारे नहीं थे यहाँ पर। We all, the Rabdasiya community, Sikh temple, the Sikh people, they all had to use the same Gurdwara. Many a times we were put on hold to go ahead with that. I'm sorry, मैं switch कर दिया English में. बहुत वक्त हमें वो वेट करनी पड़ती थी, क्योंकि गुरुद्वारा बहुत बिजी था। कभी कभी ऐसे भी होता था कि हमें बोला जाता था कि हम उनके पैंस में अपन खाना नहीं बनाए, क्योंकि वो डरते थे कि हम उनके पैंस पॉल्यूट कर देंगे।
और ये हमें रबदासिया कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए हमें कुछ स्टेप्स ऐसे करने पड़े कि हम अपने पैरों पे आप खड़ने की कोशिश करें, ताकि हमें कोई सिख टेम्पल या कोई और कोई जाति के गुरुद्वारा में जाकर अपने प्रोग्राम ना करने पड़े। सो ऐसे ये सब रबदासिया कम्युनिटी ने स्टेप्स लिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होती थी। समटाइम कभी-कभी तो एक बहुत सटल थी, लेकिन जिसके साथ होती थी उनको पता चल जाता था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कैस्ट के ऊपर। इसीलिए ये बिल रबदासिया कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सेनेटर आशा बहाव, उसके बाद हमें इस गुरुद्वारा में गुरु रविदास टेम्पल पिट्सबर्ग में अप्रोच किया गया बाय हमारे ब्रदर है विनोद कुमार चुंबर। उन्होंने रीच आउट किया कि हमें सब गुरुद्वारों की सलाह से चलना चाहिए। सो जैसे उसने ये अप्रोच किया, हम सब एकदम तैयार थे उसके पीछे जाने के लिए, क्योंकि हम सब ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और हम सब नहीं चाहते कि किसी के साथ भी कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होए, क्योंकि ये तो इंडिया में होती थी। हम नहीं चाहते कि ये कैलिफोर्निया में आए के जहाँ के सिस्टम को भी पोल्यूट करे। कास्ट सिस्टम डज नॉट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई, इसलिए हम सब फुली सपोर्ट करते हैं। हमारी रबदासिया कम्युनिटी के 6 गुरुद्वारास है कैलिफोर्निया में, और सब 6 गुरुद्वारा की पूरी संगत 100% is supporting the bill. जी, अब मैं इंजीनियर संदीप जी से जानना चाहूंगा कि सर आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर के, और क्या लगता है सर इस बिल से जो है क्या लोगों की सोच बदलेगी, और अगर वो फिर भेदभाव करते हैं तो उन्हें किस तरह से जो है वो कीमत चुकानी पड़ेगी? जी सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। सोच बदलनी पड़ेगी समाज को, और सोच बदल रही है। लेकिन इस सोच को बदलने के लिए सुशील जी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसे आप सुनीता जी ने बताया कि एक ऐसा समय था कि हमारे लोगों को ये बोला जाता था कि आप लोग पीछे बैठिए, आप लोग बर्तन कैलिफोर्निया में कि कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में ये बोला गया अमेरिका में आके कि आप जो खाना है अलग बर्तनों में बनाइए, आप जब खाना खाने बैठेंगे तो अलग पंक्ति में बैठिए, पीछे बैठिए। मेरे साथ खुद हुआ भेदभाव। मुझे कैलिफोर्निया में मेरे को काफी जाति सूचक शब्द बोले गए। मेरे को काफी चूड़ा चमार इस तरह के शब्द मेरे को बोले गए अगेन सवर्णों से। और ये फिर अब जैसे अब हम रविदास गुरुद्वारों की और जो मूवमेंट हमारी, जो इस मूवमेंट को जो बहन तैनमुरी ने और बाकी कोalition ने जो पिरोया है, सारा समाज एकत्रित हुआ। फिर समाज ने, हम सब ने ये सोचा कि अब जैसे सदगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया कि सोकत जाने पीर पर आई, कि किसी और का जो दर्द है, किसी और की पीड़ा है, तुम क्या जानो। तो इसीलिए समाज साथ में आके समाज ने सोचा कि हमको जाके बताना पड़ेगा लॉ मेकर्स को, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, कि हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है और इसको आप समझिए। ये जाति का जो भेदभाव है ये नस्ल के भेदभाव से डिफरेंट है, और इस बात को इस कोalition ने समझाया। जिस तरह से बहन तैनमुरी ने भी बताया, डॉक्टर निर्मल, बहन सना, इन सब लोगों ने एक पूरे कैलिफोर्निया में एक मूवमेंट निकाला, ऊपर से लेके नीचे तक। कैलिफोर्निया आप देखिए मैप पे बहुत बड़ा स्टेट है, हजारों किलोमीटर। ये लोग सारे के सारे असेंबली जो इनके मेंबर थे उन सब से मिले, उन सबको बताया कि ये बिल कितना क्रूशल हम लोगों के लिए है, और आप
बिकॉज यू आर चैंपियन ऑफ सिविल राइट, आप अमेरिका के लोग इस बात को समझते हैं, मानवाधिकारों की आप इज्जत करते हैं, आपको ये बात को समझना पड़ेगा क्योंकि हम आप लोगों के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये बात सारे समाज ने इन लोगों को समझाई और जितनी हमारे कोलिशन की संस्थाएं हैं, इक्वालिटी लैब्स हो गई, हमारे सिख कोलिशन के लोग, हमारे मुस्लिम कोलिशन के भाई बहन, अम्बेडकर एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका आना, और जितने हमारे गुरुदास नाम लेवा गुरुद्वारे हैं, सब ने साथ मिल करके समाज को जब बताना शुरू किया, स्टेट को बताना शुरू किया, मीडिया में आना ये बात जब आने लगी तो लोग इस बात को समझे हैं। तो इसीलिए जब ये बिल पारित होगा तो ये बात अब लोगों को समझनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो आपका दूसरा पोर्शन था सवाल का कि अगर कोई लोग नहीं मानते तो क्या होगा, फिर देखिए अब जो कानून है, कानून की लाठी है। जब ये बिल हमारे गवर्नर साहब उसको, और हम बहुत होपफुल हैं कि वो इसको पारित करेंगे, तो जैसे ये बिल लागू होगा, ये कानून बन जाएगा, तो जो ये जाति सूचक शब्द यूज करेगा, जो हमारे साथ लोगों के साथ भेदभाव करेगा, और सिर्फ हमें किसी के साथ भी जात के नाम पे जो भेदभाव कैलिफोर्निया में जब बैन होगा, तो फिर कानून की लाठी भी चलेगी और जो लोग ये काम करेंगे उनको जो कानून के अंतर्गत जो धाराएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा और कानून हमारे साथ होगा। तो इसीलिए हम इस बिल के लिए काफी आशावान हैं। जी, मैं सुंदर राजन मैम से और समझना चाहूंगा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, देश भर में, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, भारत में भी जो है इसकी चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, खबरें ऐसे भी आई कि जो है इसका विरोध भी किया जा रहा है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन खबरों में, उन दावों की कितनी सच्चाई है? Can I get a translation of the question? Yes. So Sushil is saying so this has been a historic moment, a historic bill in that context, in context of civil rights movement. But why there's opposition? What exactly their concern is? Why we see the opposition when the whole world is watching it and whole world is supporting it? You know, I think that's a great question to ask them, because the reality is this bill, SB 403, only targets those that discriminate. If you don't discriminate on the basis of caste, you should not have an issue. However, our opponents have benefited from, you know, people not understanding caste very well, because they do discriminate in many different contexts, as we've shared. So I think it scares people when change is happening and they're worried about what they might lose, because for people with privilege, equity feels like oppression. But I think what's really important to know is that this bill also covers our opponents. And oftentimes, like some of the, you know, false, you know, flags that they raise is that this bill could target people on the basis of religion or target people on the basis of ethnicity or race. The reality is those are already protected characteristics. So if they do face racial discrimination or religious discrimination, they already have coverage. But we are asking for caste to be added because when our community is going and raising issues of caste discrimination, companies like Cisco say, we don't know if it's covered, so no, it's not covered. You know, that's why even Cisco, who has been sued on the basis of caste discrimination, not only now has added caste as a protected category, but they have asked for the legislature to add it as well. So it's not controversial, but for those that want to preserve the right to discriminate, they are the ones who are upset. But my hope is that, you know, they are actually a small part of our community. You know, the broader South Asian community and the broader civil rights community is in alignment for this bill. In fact, the South Asian Bar Association weighed in on this bill, which is the largest legal association of South Asian lawyers in the United States, is in support.
So I think they are also feeling scared because more and more people from our community want to stand on the right side of history, and they represent a much smaller group of people. And I think it's important for us to really recognize this bill is part of the process to reconciliation and healing. You have to first change the discrimination and then focus on forums for healing and reconciliation. But what we can't do is let people who are fragile, define civil rights. We need to let the oppressed drive this conversation. And those of us that have experienced severe and grave discrimination need a remedy because it's unlawful and it needs to be stopped. And the state has very clear civil rights and labor obligations towards that. And that's really what's at play around this bill. It's why the bill had such strong unanimous, such strong, support across its entire pathway. So I really just, I extend empathy for, our opponents, but I also want to say we will not stop our progress towards freedom. And in fact, they should come and join us because this bill protects them as well. जी, थैंक यू मैम। मैम एक खबर मैंने पढ़ी थी आपके बारे में पिछले साल की वाशिंगटन पोस्ट ने जो है एक अखबार ने बताया था कि आपका एक प्रोग्राम जो है वो गूगल में होना था और वो रद्द कर दिया गया था क्योंकि कंपनी के जो सवर्ण हैं उन्होंने जो है आपके खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। क्या सच्चाई है इसकी? So this is regarding the Google invitation regarding the caste discussion that was denied, or the opportunity was denied. That was mentioned in Washington Post. Sushil would like to know the reality behind that. The reality is that Google actually retaliated against manager Tanuja Gupta because she was organizing to continue to keep this talk in place and to also have caste added as a protected category and educate the workplace on it. So Tanuja's case is one of the most highest ranking caste discrimination cases that have gone public in the United States. And, the opponents of this talk at Caste Equity, they just used lies and intimidation and bigotry and disinformation. So, I think that it's really unfortunate that Google platformed violence and bigotry. But again, they are an American corporation that has to adhere to standards related to civil and labor rights. So, and I think that, in the wake of that conversation, one of the things that I think has been so powerful has been that, tech workers are not allowing companies to just, drive this conversation. They are saying, we want safer workplaces. We want caste added as a protected category. Can you please add caste as a protected category? And in fact, Alphabet Workers Union, which is a core part of our coalition, was involved in both the Seattle campaigns as well as this campaign as well. So and tech workers, made tens of thousands of emails and calls alongside with us. So it in many ways, what happened to both Tanuja Gupta and myself launched a tech worker movement that has transformed institutions and jurisdictions across the country. निर्मल सर, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले भी खबर आई थी कि जो गवर्नर से SB 403 बिल है उस पर साइन कराने के लिए जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी भी जो है संघर्ष जारी है क्या? हाँ जी, क्योंकि अभी जो है बिल साइन नहीं हुआ है तो संघर्ष हमें जारी रखना पड़ेगा। तो संघर्ष की अलग अलग शेप है, अलग अलग फॉर्म है। तो क्योंकि इससे क्या हो रहा था, अभी कुछ लोग जो थे काफ़ी महीने मुशक्क़त करने के बाद, मेहनत करने के बाद थक चुके थे। तो उनमें जो है जोश नहीं आ रहा था, एनर्जी कम हो रही थी उनकी।
और जो विरोधी दल थे वो बहुत ही गलत जो प्रचार है एसपी 403 के बारे में कर रहे थे। तो इसीलिए हमें ये जो संघर्ष करना पड़ा, जिसको हम अपनी एक जैसे हमारे भारत देश में प्रथा है फास्टिंग करने की, कैसे कह सकते हैं वे, उपवास करने की, भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल। भूख हड़ताल, हाँ, भूख हड़ताल जैसे इंडिया में देखते हैं, हमें उसको वैसे नहीं देखते। हमारा जो पर्पस था कुछ अलग था इसको करने के लिए। हमारा मकसद ये था अभी जो हमारे साथी इतने महीनों से काम कर रहे थे, थक रहे थे, उनको वापस लाना भी हमारा जो है मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। हम उनको ट्रैक पे वापस लाने का मकसद था, ये पहला मकसद है। दूसरा मकसद था ताकि हम अपना विरोधियों को दिखा सके भी हम इस बिल के लिए कितने वचनबद्ध हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं इसके लिए। तो ये दूसरा कारण था हमें जो है हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी। तीसरा कारण था क्योंकि ये मैसेज आम जनता तक भी पहुंचना चाहिए, कैलिफोर्निया में भी और कैलिफोर्निया से बाहर भी यूएस में इसका जो है मैसेज पहुंचना चाहिए। तो वो जो जब लोग देखते हैं, जब मीडिया देखता है भी ये लोग जो हैं अपने हकों के लिए इतने वचनबद्ध हैं, तो वो आपके पास आते हैं जानने के लिए भी आपकी क्या स्टोरी है, क्या हो रहा है। तो एक तरह का पब्लिक ओपिनियन बनाना, अपने लोगों को इकट्ठा रखना और विरोधियों को ये संदेश देना, हम अपने हकों की लड़ाई के लिए वचनबद्ध हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमें इसमें कामयाबी नहीं हासिल होती। ये हमारा मकसद था हंगर स्ट्राइक का। तो ये हमारा मैसेज पॉजिटिव था, तो इसको हमने ऐसे देखना चाहिए रेदर देन इन अ नेगेटिव वे। तो सर गवर्नर के सिग्नेचर करने का जो प्रोसेस है वो क्या है और कितना उसका टाइम ड्यूरेशन है, उसकी जो वैलिडिटी है, तो अगर नहीं होते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा सर? हाँ जी, तो इसके लिए 3 प्रावधान है। पहला है गवर्नर जो है साइन कर दे बिल को तो वो कानून बन जाएगा। दूसरा प्रावधान है गवर्नर जो है वीटो कर दे, उसके विरोध में उसको बोले भी नहीं मैं पास नहीं करूंगा और वापस सदन में भेज दे, इसको दोबारा कंसिडर किया जाए, ये दूसरा प्रावधान है। तीसरा प्रावधान है 12 दिन जब बिल जो है गवर्नर के चला जाता है, जो इस मंडे गया था तो इस सोमवार गया था, तो उसके 12 दिन बाद गवर्नर के पास टाइम होता है उसको वीटो करने का या साइन करने का। अगर वो इस समय दौरान 12 दिनों में के भीतर या तो वो ना ही वो वीटो करता है और ना ही वो उसको साइन करता है और बिल को वैसे ही पड़ा रहने देता है टेबल पे और टाइम जो है बीत जाता है, तब भी वो जो है बिल जो है वो कानून की जो है शेप अख्तियार कर लेगा, तब भी वो कानून बन जाएगा। ये 3 प्रावधान है। जी सर, ठीक सर, ओके सर। अब मैं सुनीता सिंह जी से जानना चाहूंगा मैम, मेरा लास्ट सवाल है कि कैसे देखती हैं आप अगर ये कानून बन जाता है तो जाति भेदभाव जो है वो किस तरह से खत्म हो जाएगा, किस तरह से जो है एक बड़ा बदलाव समाज में आप देखेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको? जी सुशील जी, हमारी यही उम्मीद है कि हम सब कम्युनिटीज को एक बेगमपुरे की तरह, जहां पर किसी को कोई जाति पाति का सामना ना करना पड़े, वैसा माहौल बनाना चाहते हैं। जैसे हमारे गुरु रविदास जी की सोच थी, हम उस सोच को ध्यान में रखते हुए यही चाहते हैं कि नो मैटर कोई भी जात का, कोई भी कलर का कोई भी व्यक्ति गुरुद्वारा में जब पैर रखेगा तो उसके साथ कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। यही हमारा मेन फोकस है और मैं जानती हूँ कि ये बहुत आसान टास्क नहीं होगा, लेकिन हम सब 100% बिहाइंड द बिल है, बिल के पीछे हैं और हम जितना सख्त हमें काम करना पड़ेगा सब कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए हम तैयार हैं। जी
थैंक यू मैम। तो आप सब लोगों का शुक्रिया और हम अब इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी इस बिल से संबंधित दर्शकों को दी और जो पूरे स्थिति है उसके बारे में, जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है बताया। मैं आप सब लोगों का जो है थैंक यू, खास तौर से सुंदर राजन मैम का, निर्मल सिंह जी का और सुनीता सिंह जी मैम का, और साथ ही साथ जो पहले ही हमारे साथ जो पैनल में थे इंजीनियर संदीप जी का। तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक Thank यू, you, Ji. धन्यवाद। Bye. Jai Bhim and Jai Savitri, and we will not stop until California is a Begumpura. Bye. That's right. Jai Bhim. Bye-bye. Bye-bye. Jai Bhim, Savitri, and Jai Gurudev. Jai Gurudev.